An FIR, that is First Information Report, was filed against the son of Shinde Shiv Sena MLA Prakash Surve for allegedly abducting Rajkumar Singh, CEO of a music company in Mumbai on 9th August. Let's discuss the entire matter. Let's also listen to what Mr. Singh has said, speaking exclusively to HW News English. But before that, if you're watching this on Facebook, do like our page. And if you're watching this on YouTube, do subscribe to HW News English. An FIR, that is the First Information Report, was filed against the son of Shinde Shiv Sena MLA Prakash Surve for allegedly abducting Rajkumar Singh, CEO of a music company in Mumbai on 9th August. According to the police, nearly 15 other people were also booked along with the MLA's son Raj Surve. The CEO was rescued following police intervention and a case was registered thereafter. In the FIR, the complainant alleged that he was abducted and forcibly presented in the office of the MLA. Global Music Junction CEO Rajkumar Singh spoke exclusively to HW News English. Speaking to HW News English, Singh said, "On 9th August, I received a call around 3:20 in the afternoon, which I could not pick up due to some reasons. At around 3:30, 3:45, some people barged into my office. They dragged me out of my office, thrashed and verbally abused me. They took me to MLA Prakash Surve's office," Singh said. Singh further said, reaching at MLA Prakash Surve's office, he came to know that it's related to a business dispute against which his business partner Manoj Mishra wanted to settle through Raj Surve. Singh was shifted to 3 different locations and was finally taken to Prakash Surve's office, where Surve's son Raj Surve was present. And at gunpoint, Singh was forced to sign on a stamp paper that would cancel the contract between the two parties, said Singh. Raj Surve informed Singh that at Prakash Surve's office, he runs a helpline center where he solves disputes, and he asked Singh to sign the contract, according to Singh. Manoj Mishra, who had allegedly approached Surve along with 2 others, have been arrested. Rajkumar Singh said incidents like these are a setback for Mumbai, as Mumbai is said to be the safest city and the financial capital of the country. Rajkumar Singh also said that his family members are still worried about his safety. Let's listen in to what Rajkumar Singh said. सर थोड़ा विस्तार में बताइए क्या मामला हुआ था, एग्जैक्ट क्या चीज़ें हुई थी? तो 9 अगस्त के को 3:20 3:25 के करीब एक फ़ोन आया मेरे को, जो फ़ोन को मैं उठा नहीं पाया किसी कारणवश, क्योंकि मैं एक दूसरे कॉल पे बिज़ी था। तो 3:30 पौने 4 बजे के करीब कुछ लोग मेरे ऑफिस आए और मेरे कैबिन में घुस आए। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा बेसिकली पहले। मैंने बोला राजकुमार है। मैंने अपना हाथ बढ़ाया उन्हें मिलाने के लिए। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के खींच लिया बाहर, और खींचने के बाद उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया वहीं पे, और मारते मारते मुझे घसीट के लिफ्ट तक लेके गए। और लिफ्ट तक ले जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे मेरे से डिस्कशन किया कि जब तेरा बाप तेरे को फ़ोन करता है तो उठाने का। तो मैंने पूछा उसको कि कौन बाप? तो इस साइड कि चल तुझे मालूम पड़ेगा। वहाँ से घसीटते हुए मुझे वो गाड़ी में ले गए। हुंडई की गाड़ी थी और उसके पीछे एक फॉर्च्यूनर थी, और वहाँ से वो लोग मुझे सीधे दहिसर ईस्ट ले गए, जहाँ पे प्रकाश सुर्वे जी के ऑफिस में। और वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये मैटर हमारा एक बिज़नेस पार्टनर है आदिशक्ति फिल्म, उसने वहाँ पे कुछ कंप्लेन किया था, जिसके तहत इनके गुंडों ने मुझे वहाँ से ऑफिस से मुझे पिकअप किया और वहाँ बिठा के मुझे एक पेपर पे साइन करने को बोला गया। इतनी देर में मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने फ़ोन किया और फ़ोन करके कंट्रोल रूम्स को इन्फॉर्म किया, और कंट्रोल रूम ने मेरे को फ़ोन करना शुरू किया, जो कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, उन लोगों ने ले लिया था फ़ोन मेरा, तो जिसके कारण मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। बट उसके बाद उन्होंने वहाँ उनके ऑफिस में फ़ोन किया राज सुर्वे जी को, और उनसे जो भी उन्होंने पूछा तो उन्होंने मना किया, यहाँ पे कोई आदमी नहीं लाया गया। और वहाँ से मेरे को जैसे उनको पता चला कि कंट्रोल रूम ने मुझे ढूंढना शुरू किया है, दे हैव शिफ्टेड टू मी है न्यू प्लेस, सेकंड जगह पे एक फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए, और वहाँ ले जाके 15-20 लोगों के साथ मुझे भेजा, और वहाँ मेरे से 500 रुपये के एक स्टैम्प पेपर पे साइन करवाया ज़बरदस्ती, और कुछ लिखवाया जो मेरे एग्रीमेंट्स थे इनके साथ, आदिशक्ति फिल्म के साथ। हाँ जी, बंदूक के नोक पे साइन कराया और दबाव देते हुए।
क्योंकि कुछ जगह पे मैं लिखने से हिचकिचा रहा था, तो उन्होंने बोला लिखने को बहुत प्रेशराइज़ किया। और उसके बाद जब वहाँ बार बार मुझे फ़ोन आ रहा था पुलिस का, तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे एक तीसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। और वहाँ आधे घंटे रखने के बाद वापस मुझे वो सुरभि जी के ऑफिस लेके आ गए, जहाँ से पुलिस ने मुझे रेस्क्यू किया और वहाँ से मेरे को वनराय पुलिस स्टेशन लाया गया। सर थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि क्या डिस्प्यूट था बिजनेस का, अगर आप बताएं। कुछ नहीं, हमने उनको बिजनेस एडवांस दिया हुआ है आदिशक्ति फिल्म को, जिसके अगेंस्ट में उनको काम करना है, जो अभी वो नहीं कर रहे हैं। वो पैसा वो खर्च कर चुके हैं और उनके पास अभी पैसे नहीं है, जिसके कारणवश वो ये उल्टे सीधे तरीके अपना रहे हैं, जिसको बैठकर भी सुलझाया जा सकता था। तो जबरन जिस कागज पर आपको साइन करवाया गया वो क्या था एग्जैक्टली? कुछ नहीं, उस पर ये लिखा गया था कि जो भी हमारे पहले के एग्रीमेंट हैं वो सारे एग्रीमेंट रद्द किए जाते हैं। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी क्या लेटेस्ट अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए, उसके जो मेन अक्यूज्ड हैं मनोज मिश्रा और उनके साथ 2 लोग और हैं, वो गिरफ्तार हो गए हैं। उनको आज पुलिस कस्टडी मिल गई है 5 दिन की कोर्ट से, 4 से 5 दिन की, और अभी आगे की कार्रवाई चालू है। बाकी लोग अभी जितने भी लोग वहाँ पे आए थे उनमें से कोई पकड़ा नहीं गया है और मेरे को लगता है कि पुलिस जल्दी उनको पकड़ लेगी। प्रकाश सुरवे, राज सुरवे से आप पहले कभी मिले क्या? नहीं, मैं पहली बार उनसे उनके ऑफिस में ही मिला। तो उन्होंने मतलब क्या धमकी वगैरह क्या दिया आपसे? क्या हाँ, वही सब बातें हैं कि हमारा ये सहायक केंद्र है, यहाँ पे हम सब लोगों की सहायता करते हैं, तो आपका जो भी मसला है। मैंने कहा सर हमारी बातें भी सुनी जाएँ, तो बोला वो सब ठीक है, लेकिन ये हमारे जानकार हैं, मित्र हैं, जो भी ये ख़त्म कीजिए और इस चीज़ को इनका पेपर साइन करके इनको फ्री कर दीजिए। तो समानांतर रूप से वो कहीं अदालत जैसा चला रहे, मतलब वो डिस्प्यूट सॉल्व करवा रहे जबरन? जी ये आप कह रहे हैं? जी जी जी। अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस समय आपको देख रहे हो तो जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, एक ही चीज़, बॉम्बे सबसे सेफ सिटी है हमारे देश की, ठीक है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर इतनी सेफ सिटी होने के बावजूद अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो इट्स अ प्रॉब्लम। मैं खुद बॉम्बे में ना रहने वाला, 14 साल तक अगर बॉम्बे में रहा हूँ और कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। और बॉम्बे इतना सेफ होने के बाद ऐसा होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि बॉम्बे इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और यहाँ पे लोग व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए हर क्षेत्र से आते हैं। तो मेरी एक ही उम्मीद रहेगी कि जो कभी नहीं हमारे साथ हुआ और जो अब हुआ है, तो भविष्य में कभी किसी के साथ ना हो, बस इसका ध्यान रखा एक जाए। आखिरी सवाल, घर में अभी भी भय का माहौल है, डर का माहौल है? ऑफ कोर्स है, वो तो बट ऑब्वियस है, परेशान है सब लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है। That's it for this report. For more such news and updates, subscribe to HW News English.